Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh, Government Senior Secondary Smart School, Sabuana, District Fazilka, and I welcome you all in this channel Amit Juneja Economics and in this lecture of propensity to consume. In the last lecture we discussed about the consumption function and one most important feature of consumption function, and that is the autonomous level of consumption, or we call it the minimum level of consumption, which is independent from the level of income. It is that level of consumption which a person has to make in order to live a healthy life. After that, what will be consumed by a person is entirely depends upon his or her income, and there is a positive relation between income and consumption. As there is an increase in income, there is an increase in consumption, and there is a decrease in income, then there is a decrease in consumption as well. So income and consumption go side by side, but not in a proportional way, and not there because there is no proportional relationship between income and consumption. If there is an increase in income, there is a increase in consumption as well, but not in the same proportion as our income increases. If our income doubles, it doesn't mean that our consumption also double, and if our income remains half, it doesn't mean our consumption also remains half. When there is a decrease in income, there is a decrease in consumption, but less than decrease in income. And if there is an increase in income, there is an increase in consumption, but not in the same proportion as the income increases. So we make a table from this analysis, and we call that table propensity to consume. And what is that propensity? Propensity means our tendency to consume or our preferences to consume. Means that table shows how we prefer to consume at a given level of income. If we are given a certain level of income, for example our income is 100 or 200 or 300, what are our preferences for consumption? What amount of this consumption or income we want to consume, and we make a table from that, and today our lecture depends upon that table. So our topic for today is propensity to consume. So propensity to consume, हम क्या करेंगे उसमें? सबसे पहले we make a table of income and consumption, in which income is an independent variable and consumption is a dependent variable. We are not going to make any another table because but we are using our old table as we have discussed in our last lecture. So in the last lecture we make a table in which our income level is 100. At income level of 100, our consumption is 80. When our income is 200, our consumption is 150, and when our income is 300, our consumption is 210. So this table is showing our tendency towards consumption or our preferences towards consumption at a certain level of income, what we intend to consume. Oh, so we can say that if our income level is 100, we are ready to consume 80. When income is 200, we are ready to consume 150, and when our income is 300, we are ready to consume 210. And if we are consuming 80 out of 100, it means we are saving rupees 20. At 200 we are consuming 150, it means we are saving rupees 50. And if 300 level of income and consumption level is 210, it means we are saving 90 rupees of our income. So this table shows our tendency towards consumption, and that is called a propensity to consume. So अब हम क्या कर सकते हैं? We can calculate two things from this table. We can calculate the average of this table, and we also can calculate the marginal of this table. So I am using two words. What are the two words? First, I said that we can calculate the average of this table. Average of this table. So what is this table is showing? This table is showing propensity to consume. So I am saying that we can calculate average of this table. So ultimately we can calculate average propensity to consume.
Okay, so first of all we are going to calculate average propensity to consume. Now what is average propensity to consume? What is your average? What is the average? So हमने already discuss कर लिया कि propensity to consume क्या है. ये हमारी consumption के context के अंदर it's our tendency or it's our preference. So we have to calculate the average of our preferences towards consumption. So how can we calculate that average? So what is average? हम क्या करते हैं आमतौर पे जब हम अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं उसको हम सिंपल लैंग्वेज के अंदर हम उसको कहते हैं एवरेज. सो एवरेज बोलिए या आप उसको अरिथमेटिक मीन बोलिए, वन एंड द सेम थिंग. सो उसके अंदर हम क्या करते हैं, सपोज देयर आर 3 स्टूडेंट्स इन माय क्लास 1 2 and 3. Okay, first student has rupees 10, second has 20 and third has 30. Okay, so I have to calculate the average or I have to calculate the mean of this. So हम क्या करेंगे, हम इन तीनों को प्लस करेंगे सबसे पहले. तो टोटल कितना आ जाएगा 60. सो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि हमने 3 आइटम्स का एडिशन किया है, सो वी डिवाइडेड बाय 3. तो अल्टीमेटली आंसर कितना आ गया 20. सो द एवरेज ऑफ दीज 3 स्टूडेंट्स इज 20. सो अब हमने एवरेज तो कैलकुलेट कर लिया पर हमें ये तो पता ही नहीं लगा कि एवरेज है क्या चीज. देखिए एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज मींस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, यानी जो भी आपके पास है, और कोई भी कमोडिटी हो सकती है, बुक्स हो सकती हैं, रुपीस हो सकते हैं, कुछ भी है आपके पास, आपने क्या करना है जब भी उसकी एवरेज कैलकुलेट करनी है तो आपने ये देखना है कि जितने भी लोगों के पास वो चीज है, वो चीज कुछ भी हो सकती है, मैंने भी कहा रुपीस हो सकते हैं, पॉकेट मनी हो सकती है, बुक्स हो सकती हैं, वेट है, हाइट है, कुछ भी हो सकता है, हमने सभी लोगों के अंदर उसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करनी है. व्हेन वी आर एबल टू फाइंड आउट दैट अमाउंट कि वो क्या कर सके, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके, हम कहेंगे कि हमने एवरेज जो है वो फाइंड कर ली है. सो एवरेज मींस द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनीथिंग. जैसे अब मैंने कहा कि सपोज कीजिए कि मेरी क्लास में 3 स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट के पास 10 रुपीज है, सेकंड के पास 20 है और थर्ड के पास 30 है. इसका मतलब कि तीनों के पास इक्वल रुपीज नहीं है. तो मैंने क्या किया, मैंने पहले स्टूडेंट को कहा कि आप मुझे अपने 10 रुपीज दे दीजिए. ओके, तो मैंने पहले स्टूडेंट से 10 रुपीज जो है वो ले लिए. सेकेंड स्टूडेंट को बोला कि आप मुझे 20 रुपीज दे दीजिए. थर्ड को बोला मुझे 30 रुपीज दे दीजिए. तो मैंने पहले से 10, दूसरे से 30 और तीसरे से 30 रुपीज जो हैं वो मैंने ले लिए. ओके, अब मेरे पास कितने पैसे हुए, अगर मैंने फर्स्ट से 10, सेकंड से 20 और थर्ड से मैंने 30 लिए तो मेरे पास आ गए टोटल 60 रुपीज. ओके, तो जो 60 रुपीज मैंने लिए, मैंने कितने स्टूडेंट से लिए, 3 से. अब मेरे पास 60 रुपीज हैं और मैंने उन तीनों के अंदर इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो अब अगर हम कॉमन सेंस भी लगाएं और ये फॉर्मूला ना भी लगाएं तो क्या आएगा, हमें ये पता लगेगा कि अगर हमारे पास 60 रुपीज हैं और हमने उसको 3 लोगों के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, देन वी हैव टू गिव 20 रुपीज टू ईच स्टूडेंट. तो व्हाट इज दैट 20? दैट 20 इज द एवरेज. तो अब हमने क्या करना है, इसी एवरेज का जो कॉन्सेप्ट है मींस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनीथिंग, तो हमने उसको यहां पर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के ऊपर जो है वो लगाना. मतलब ये जो टेबल आपको नजर आ रहा है, हमने इस टेबल की क्या निकालनी है, एवरेज निकालनी है. तो हम यहां पे लिखेंगे APC. APC मींस एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. अब सोचो, अगर हमें एवरेज निकालनी होती है किसी भी चीज की, तो हमने अभी क्या किया था, हमने कहा था एक के पास 10 है, एक के पास 20 है, एक के पास 30 है. सो इट इज डिवाइडेड बाय 3. 60 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर कितना आ गया 20. दिस इज द एवरेज. अगर हमें एवरेज कैलकुलेट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टोटल को किसी भी चीज के साथ डिवाइड करना पड़ेगा. अगर हम एवरेज निकाल रहे हैं, वी हैव टू डिवाइड वन थिंग विद द अनदर. तो ये तो फाइनल है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमें एवरेज निकालनी है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा. तो मैंने क्या किया, ये डिवीजन का साइन जो है वो लगा दिया.
ओके अब सोचो आपके पास ये टेबल है, अब कंफ्यूज नहीं होना है इसमें भी किसको किसके साथ डिवाइड करें। इट्स वेरी सिंपल। आप ये देखो, आपने एवरेज निकालनी है, एवरेज निकालने के लिए डिवीजन कंपलसरी है, बिना डिवीजन किए तो एवरेज हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने एवरेज का बोला क्या था, मैंने कहा था एवरेज है सभी लोगों के अंदर किसी भी चीज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। तो डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब डिवाइड करना, तो डिवीजन तो होगी ही होगी। सो एवरेज के लिए हमने क्या किया, ये जो डिवीजन का साइन है ये हमने लगा लिया। अब ये आपके साथ ना एक आपके पास एक ये देखो टेबल है। अब टेबल में आपके पास सिर्फ दो चीजें हैं, एक है इनकम, एक है कंजम्पशन। ओके यहां पर आपने डिवीजन का साइन लगा दिया, यानी अब आप क्या कर सकते हैं, या तो आप इनकम को ऊपर लिख लीजिए और कंजम्पशन को नीचे लिख लीजिए। अब देखो दो ही चीजें और एवरेज में दो ही चीजें पुट होनी है, या तो इनकम ऊपर लिख लो कंजम्पशन नीचे लिख लो, या तो ये हो सकता है, या क्या हो सकता है इसका मैं इन्वर्स कर सकता हूं। अगर मुझे ये पसंद नहीं आया तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जो न्यूमिनेटर है उसके अंदर मैं कंजम्पशन को लिख दूंगा और डिनोमिनेटर के अंदर मैं इनकम को लिख दूंगा। अब या तो जो मैंने पहले फॉर्मूला लिखा था वो सही था, या जो मैंने अभी लिखा है वो सही है। अब दोनों में से एक तो ठीक है, ठीक है, क्योंकि दो चीजें हैं, एक आपने ऊपर लिखना है, एक आपने नीचे लिखना है। तो स्टूडेंट आमतौर पे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने न्यूमिनेटर में क्या लिखना है और हमने डिनोमिनेटर में क्या लिखना है। इट्स वेरी सिंपल, हम कैसे कर सकते हैं, देखिए अब आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, एक है इनकम और एक है कंजम्पशन, एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है। अब सोचो पहले तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इनकम। अगर इनकम में चेंज आएगा तो कंजम्पशन में चेंज आएगा। सो अब क्या हुआ, इनकम में चेंज पहले आया तो इनकम क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसके करके कंजम्पशन में चेंज आ रहा है तो कंजम्पशन क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब एक इंडिपेंडेंट है एक डिपेंडेंट है, तो हम क्या करते होते हैं, हमेशा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो क्या हैं, वो एज अ बेस काम करते हैं, किसके लिए, डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए। क्योंकि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके अंदर जो चेंज आना है उसका बेस क्या है। अब डिपेंडेंट वेरिएबल में वैसे तो चेंज नहीं आ सकता ना, डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज कब आएगा, जब इंडिपेंडेंट में चेंज आएगा। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, वो डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए एज अ बेस काम कर रहा है। तो अगर वो बेस काम कर रहा है तो वो हमेशा बेस में होगा, बेस में होगा मतलब डिनोमिनेटर में होगा। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं हम हमेशा उनको क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो अगर इनकम डिनोमिनेटर में आएगा तो ऑब्वियस है जो आपका कंजम्पशन है वो न्यूमिनेटर में आएगा। तो एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला क्या बना, इट इज सी अपॉन वाई। सी अपॉन वाई मींस कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। अब देखो फर्स्ट के अंदर जो कंजम्पशन है वो कितनी है, वो है 80, इनकम कितनी है 100, so we divide 80 by 100 in order to get APC. Next, income or consumption. So consumption is 150, income is 200, then consumption is 210, income is 300. So we divide 210 by 300. So 0 cancel by 0, so it's 0.8, 0 0 cancel. So 3 by 4, 3 by 4 means 0.75, 0 0 cancel, 3 by 10, sorry 7 by 10, so it is 0.70. So this is your APC, average propensity to consume. So हम क्या कर सकते हैं, ये जो average propensity to consume है इसको हम एक डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम फिर से अपने x एक्सिस और y एक्सिस जो हैं उसकी हेल्प लेंगे और उसके अंदर जो हमारी कंजम्पशन है वो रहेगी y एक्सिस पे, कंजम्पशन इज ऑन y एक्सिस and income is on x axis. Okay, so this is x, this is y. So our income level is 100, 200 and 300. Our consumption is 80, 150 and 210. So हम क्या करते हैं, यहाँ पे 210 जाना है तो हम यहाँ पे 50 का स्केल ले लेते हैं. So this is 50, this is 100, this is 150, this is 200 and this is 250. Okay, so first income is 100, consumption is 80. So income is 100, consumption is 80. So 80 falls here somewhat between 100 and 50. So this is your point A.
at point A your APC is 80 by 100 or 0.8. Okay, now comes to another level. Income 200 and consumption 150. Consumption is 150 and your income is 200. So now we are at point B. At point B, AP says 150 by 200, 0.75. Next we comes to income 300, consumption 210. So 210 comes here, 210, and the level of income is 300. So we are at point C. At point C, it is 210 divided by 300, so it is 0.70. Okay, so if we join A, B and C, so A, B and C, so we get a consumption curve CC and the various points on it A, B and C shows various levels of APC. So कई बार हमें क्या होता है, हमें ना एक न्यूमेरिकल आ जाता है, या कई बार हमें जो है ट्रू फॉल्स के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि ऑन अ स्ट्रेट लाइन और ऑन अ लीनियर कर्व और ऑन अ नॉन लीनियर कर्व APC remains constant. So it is not compulsory that APC remains constant. देखिए अब लाइन स्ट्रेट बनी है, उस पे क्या हो रहा है, A पॉइंट पे आपकी APC 0.8 है, B पॉइंट पे 0.75 है, C पॉइंट पे 0.70 है. अब APC तो सेम नहीं है ना, तो एक ही कर्व के ऊपर ये जरूरी नहीं है कि जो भी आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगी वो सेम रहेगी, वो डिफर कर सकती है. सो दिस इज आवर डायग्राम. हम इसको टेबल और डायग्राम दोनों से जो है वो हम इसको शो कर सकते हैं. ओके, नाउ इट्स क्लियर. सो द सेकंड कॉन्सेप्ट जो हम इससे कैलकुलेट करेंगे, अब हम एपीसी कैलकुलेट नहीं करेंगे, अब हम एक और चीज कैलकुलेट करेंगे. उसके लिए हम टेबल जो है वो सेम ही यूज करेंगे एंड वो जो होगा उसका हम नाम देंगे इट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. सो इट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. यानी अब आपने क्या करना है, पहले देखिए प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब जो भी आपकी प्रोपेंसिटी और योर टेंडेंसी और योर प्रेफरेंसेस हैं टुवर्ड्स कंजम्पशन, आपने क्या करना है, उस आपकी प्रेफरेंसेस और योर बिहेवियर टुवर्ड्स कंजम्पशन आपने उसका क्या कैलकुलेट करना है, मार्जिनल. आपने उसका मार्जिनल कैलकुलेट करना है. एंड व्हाट इज मार्जिनल, हम बहुत बार पहले भी बात कर चुके हैं कि मार्जिनल मींस चेंज. ये माइक्रो इकोनॉमिक्स जब करते हैं उसमें मार्जिनल बहुत बार यूज होता है. लाइक हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, उसमें हम कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू. सो मार्जिनल बहुत बार आता है. सो एवरी टाइम मार्जिनल मींस चेंज. तो अब हमने क्या करना है, मार्जिनल मींस चेंज. चेंज किसके अंदर, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के अंदर. मतलब ये जो आपका टेबल बना पड़ा है यहाँ पे, जिसको हमने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का नाम दिया था, हमने क्या करना है, उस टेबल के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं हमने उसको कैलकुलेट करना है. ओके, ध्यान से समझिए कि जो भी आपकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, तो ये टेबल क्या कर रहा है, ये आपकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को दिखा रहा है. ये टेबल ये बता रहा है कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या है कंजम्पशन के टुवर्ड्स. मतलब ये कह रहा है कि अगर आपकी कंजम्पशन जो है वो 80 है, इसका मतलब आपकी इनकम 100 है. अगर आपकी इनकम 200 है तो आपकी कंजम्पशन 150 है. कंजम्पशन आपकी 210 तब होगी जब आपकी इनकम 300 होगी, नहीं तो नहीं होगी. मतलब ये टेबल ने क्या किया, आपकी जो बिहेवियर है या आपकी जो टेंडेंसी है उसको दिखा दिया कि कंजम्पशन के टुवर्ड्स आपकी प्रेफरेंसेस जो हैं वो ये रहने वाली है कि अगर आपकी इनकम का लेवल इतना रहने वाला है तो आपकी कंजम्पशन का लेवल जो है वो इतना रहने वाला है. ठीक हो गया. अब ये टेबल आपको बोलता है कि अब हमने क्या करना है, ये जो आपकी प्रेफरेंसेस हैं इसमें जो चेंज आ रहा है वो दिखाओ. अब चेंज किस में आएगा, दो ही सिंपल आंसर है इसके. जब आपके पास टेबल के अंदर दो कॉलम है, एक कॉलम है इनकम का और एक कॉलम है कंजम्पशन का, दो कॉलम है. अब चेंज आएगा तो किस में आएगा, अब जो अगर आपके पास कॉलम ही दो है तो जो चेंज आएगा वो भी दो कॉलम में ही आएगा. जब थर्ड कॉलम ही नहीं है हमारे पास तो चेंज कहां से आएगा. तो इसका मतलब अब चेंज किस में आ सकता है, चेंज या तो इनकम में आ सकता है या चेंज कंजम्पशन में आ सकता है. सो यहां पे हम लिख लेते हैं सबसे पहले चेंज इन इनकम. ओके,
यू हैव टू कॉलम्स, इनकम एंड कंजम्पशन, चेंज अब दोनों में आएगा, ठीक है। तो यहां पे हम लिख लेते हैं चेंज इन कंजम्पशन, ओके। सो हमने दोनों का चेंज लिख लिया। अब सोचो अगर मैं बोलूं कि मेरी इनकम 100 है और मेरी कंजम्पशन 80 है, ठीक, तो अब चेंज कितना आया? चेंज तो पता ही नहीं, क्योंकि 100 से पहले इनकम कितनी थी वो तो मुझे पता ही नहीं, मैंने टेबल में लिखा ही नहीं उसको। जब अगर मुझे ये पता होता कि 100 से पहले मेरी इनकम 50 रुपीज की थी, तो मैं कहता कि पहले मेरी इनकम 50 थी, अभी मेरी इनकम 100 है, तो मेरी इनकम में 50 का चेंज आया। अब 100 से पहले कितनी थी पता ही नहीं। वैसे ही अब यहाँ पे मेरी कंजम्पशन 80 लिखी हुई है, लेट इट बी कि इससे पहले मेरी कंजम्पशन जो है वो 50 होती, तो मैं कहता पहले मेरी कंजम्पशन 50 थी, अभी मेरी कंजम्पशन 80 है, तो इसमें 30 का चेंज आया। पर मुझे तो पता ही नहीं कि 80 से पहले मेरी कंजम्पशन कितनी थी, तो इनका तो चेंज कैलकुलेट ही नहीं हो सकता, क्योंकि चेंज पता लगाने के लिए क्या चाहिए होता है? चेंज पता लगाने के लिए उससे जो प्रीवियस पोजीशन है, पहले वाली जो पोजीशन है वो पता होनी चाहिए। अगर आपको पिछली पोजीशन नहीं पता तो आप चेंज कैसे कैलकुलेट करोगे ना? तो इससे में चेंज नहीं आएगा, तो मैंने चेंज की जगह पे क्या कर दिया, डैश लगा दिया। अब इन दोनों का चेंज जो है वो कैलकुलेट नहीं हो सकता ना। नेक्स्ट देखो, अब पहले मेरी इनकम जो है वो 100 थी पहले, ठीक है, और अब मेरी इनकम 200 है। अब सोचो, अब चेंज कैलकुलेट हो सकता है, क्यों? अब मुझे 200 में ये पता लग गया कि 200 तो मेरी इनकम जो है वो अभी है, पहले 100 थी, तो अभी चेंज कितने का आया? 100 का। तो अब इनकम में चेंज कितना लिख दिया हमने? 100 का। कैलकुलेशन हो गई ना? तो ये चेंज कैलकुलेट हो सकता है, पर 100 से पहले वाला चेंज जो है वो कैलकुलेट नहीं हो सकता, क्योंकि हमें 100 से पहले की पोजीशन नहीं पता। नेक्स्ट देखो, अब अगर मुझे यहाँ पे चेंज पता लगाना है, अब मैं कहता हूँ कि मेरी इनकम का लेवल जो है वो 300 है, उससे पहले मेरी इनकम जो है वो 200 थी, तो कितने का चेंज आया? अभी 300 है, पहले 200 थी, तो चेंज कितने का आया? चेंज फिर 100 का आया, तो यहाँ पे 100 का लिख दिया। डन। अब ये तो इनकम के चेंज निकल गए। अब आ जाओ कंजम्पशन पे। अब पहले मेरी कंजम्पशन जो है वो थी 80 की, अभी मेरी कंजम्पशन है 150 की, तो 80 से 150 कितने का चेंज हुआ? 70। तो चेंज इन कंजम्पशन ये हो गया 70। अब आगे देखो, जब मेरी इनकम 200 से 300 हुई, मेरी जो कंजम्पशन है वो 150 से 210 हुई, कितने का चेंज आया? 150 टू 210 कितने का चेंज आया? 60 का। तो यहाँ पे चेंज इन कंजम्पशन कितना हो गया? 60। नाउ योर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, क्या क्या पता लगाना है? चेंज। तो हमने क्या किया था, जब इसकी एवरेज निकाली थी तो हमने कहा था इट्स C अपॉन Y। अब मार्जिनल आ गया। मार्जिनल क्या होता है? मार्जिनल होता है चेंज। तो हम क्या करते हैं, यहां पे ऊपर भी डेल्टा और नीचे भी डेल्टा लगा देते हैं फॉर चेंज। डेल्टा मींस चेंज। सो व्हाट इज योर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? it is delta C upon delta Y. Delta C means a change in consumption divided by change in income. So यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं? यहाँ पे हम लिखने वाले हैं MPC. So जब यहाँ पे चेंज नहीं पता, यहाँ पे चेंज नहीं पता, तो फिर पहले पे तो MPC कैलकुलेट ही नहीं होगी। ओके, MPC stands for marginal propensity to consume. क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अब यहां पर, अब अगर यहां पे कैलकुलेट करें, योर चेंज इन कंजम्पशन इज 70, ओके, नाउ डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम इज 100, सो योर MPC इज 0.7. नेक्स्ट, चेंज इन कंजम्पशन इज 60 divided by change in income which is 100, so your MPC is 0.6. now it's clear. so अगर हमें MPC यानी कि marginal propensity to consume को कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे? we divide change in consumption by change in income. जैसे हमने एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को कैलकुलेट किया था टेबल के थ्रू, और उसके बाद हमने उसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की थी, वैसे हम इसमें भी करने वाले हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो हैं उनको हम लेंगे, ठीक है। मैं डायग्राम थोड़ी सी बड़ी बना रहा हूं ताकि यहाँ पे जो चेंजेस हैं वो आपको क्लियरली पता लग जाए। एज यूजुअल यहाँ पे वाई एक्सिस पे कंजम्पशन और एक्स एक्सिस पे इनकम. So your income level is 100,
next your income level is 200, and next your income level is 300. Okay, consumption approximately 210. ठीक है, so this is your 50, 100, 150, 200 and 250. So this is 50, 100, 150, 200 and 250. Okay, first of all if we want to calculate the change, हमने change पता लगाना है, तो उसके लिए क्या पता होना चाहिए, हमें अपनी प्रीवियस पोजीशन पता होनी चाहिए कि अगर प्रीवियस पोजीशन पता होगी तो ही चेंज कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले तो प्रीवियस पोजीशन कैलकुलेट करते हैं। सो इनकम लेवल जो है वो 100 है और उसके अकॉर्डिंगली जो कंजम्पशन लेवल है दैट इज 80 एंड दिस इज योर इनिशियल पॉइंट ए। सो वी आर एट दिस पॉइंट, ए पॉइंट। ओके, नाउ अब क्या हुआ, उसके बाद रिजल्ट ये निकला कि हमारी जब इनकम 200 हुई तो उसके करके हमारी कंजम्पशन हो गई 150। सो आवर कंजम्पशन इज 150 व्हेन आवर इनकम इज 200। सो वी गोज टू दिस पॉइंट B. Okay, so if I go from here to this point, okay, अब क्या हो रहा है, अब अगर मैं यहां से ये जो मेरा 80 वाला पॉइंट था, अब मैं 80 से गया 150, मैं इतना ऊपर गया y एक्सिस में, तो ये हुआ 70। ओके, देख लीजिए चेंज इन कंजम्पशन 80 टू 150 70। जब मैं इस पॉइंट से 100 से 200 पे गया तो ये कितना आया 100। सो दिस 70 ये क्या है, दिस इज माय डेल्टा C 70 एंड व्हाट इज दिस 100, दिस इज माय डेल्टा Y। सो अब क्या हो रहा है, इस B पॉइंट पे मेरी जो MPC है वो कितनी है, वो है 0.70। मतलब मैंने क्या किया, ये 0.70 कैलकुलेट करने के लिए मैंने 70 डिवाइडेड बाय 100 जो है वो कर दिया। मतलब अगर मैं इसको यहां पर ऐसे भी कर लूं, I divide this segment, this one with this one. Okay, so this is 70, this is 100, so 70 divided by 100, so it is 0.70. Next, अगर हम next point पे जाएं तो अब क्या हो रहा है कि 210, so 210 यहाँ पे आ जाएगा। so अगर हमारी consumption 210 है, इसका मतलब हमारी जो income है वो कितनी है, वो 300 है। तो हम यहाँ पे आ गए C पॉइंट पे। अब जो आपने C पॉइंट का कंपैरिजन करना है वो आपने A से नहीं करना, ये A पॉइंट से नहीं करना, क्योंकि मैंने कहा था प्रीवियस पोजीशन। तो C का प्रीवियस क्या है, C का प्रीवियस है B। अब C का कंपैरिजन B के साथ होगा। अब B में आप यहाँ पे 150 में थे, आप 150 से गए यहाँ पे 210 पे, मतलब ये आपकी कंजम्पशन में चेंज आया 60 का। यहाँ पर आप गए 200 से 300, ये आपकी इनकम में चेंज आया 100 का। मतलब अगर हम इधर चले जाएं और हम ऐसे आ जाएं, यानी ये हो गया 60 और ये हो गया 100, 60 डिवाइडेड बाय 100, तो 0.60 जो है वो आपकी कंजम्पशन आ गई। ओके, सो ये आपकी MPC 0.60 एट पॉइंट C, योर MPC 0.70 एट पॉइंट B। अगर हम क्या करें, अगर हम A, B और C को मिला दें आपस में, सो वी ज्वाइन A with B with C, then we cut a consumption curve in terms of CC. So आपकी जो marginal propensity to consume है वो क्या है, it is a ratio। अब यहाँ पे MPC है तो हम इसको डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y जो है वो कह सकते हैं कि अगर हमने जो है MPC कैलकुलेट करना है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैलकुलेट करना है, तो मार्जिनल ऑलवेज मीन्स अ चेंज। तो हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास दो कॉलम है, एक हमारे पास इनकम का है, एक हमारे पास कंजम्पशन का है, तो हमने दोनों में चेंज कैलकुलेट करना है। तो पहले दो कॉलम बना लीजिए, चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन। तो क्या करिए, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, वो क्या हो जाएगा, वो आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। सो दिस इज योर आंसर। ओके, अब इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पंच पॉइंट है जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, और वो ये है कि हम बहुत सारी कर्व्स बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ये CC
कंजम्पशन कर्व बनाई, ठीक है। वैसे ही जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उसके अंदर हम बहुत सारी कर्व बनाते हैं, लाइक डिमांड कर्व, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, और इट्स टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन कर्व, और टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट कर्व, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, प्रॉफिट कर्व, बहुत सारी कर्व जो हैं वो हम बनाते हैं। तो जब भी कोई भी कर्व बनाते हैं तो उस कर्व की एक स्लोप होती है, ठीक है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज द स्लोप। तो अगर मैं आपके सामने एक ऐसी एक सिंपल से बना दूं, सपोज करो कि वो आप पार्क में गए तो वहां पे आपने वो स्लाइडर देखा जहां पे वो बच्चे ऊपर बैठते हैं और सीधा ऐसे नीचे आते हैं, द स्लाइडर। तो अब सोचो कि मैं अगर आप यहाँ पे आपको दो स्लाइडर बना दूं, लेट इट बी इट इज फर्स्ट स्लाइडर एंड दिस वन इज अ सेकंड स्लाइडर। ये दो स्लाइडर है आपके पास। तो अगर मैं बोलूं कि एक स्टूडेंट है मेरी क्लास में, उसका नाम है ए, एक स्टूडेंट है उसका नाम है बी, तो ये दो स्टूडेंट है। तो अब एक इस स्लाइडर पे बैठ गया, एक इस स्लाइडर पे बैठ गया, तो जल्दी कौन नीचे आएगा? ऑब्वियस है ए वाला, क्योंकि इसकी स्लोप जो है वो क्या है, वो ज्यादा है, तो वो बिल्कुल घूम करके नीचे आएगा। ये क्या होगा, इसकी स्लोप कम है तो वो धीरे धीरे नीचे आएगा। सो इसकी स्लोप ज्यादा, इसकी स्लोप कम ना, तो हमने स्लोप कैलकुलेट की ना। तो स्लोप कैसे कैलकुलेट होती है, आप एक जर्नल फॉर्मूला जो है वो ध्यान में रख लीजिए कि अगर आपने किसी भी कर्व की, मैं किसी भी कर्व की बात कर रहा हूं, अगर आपने किसी भी कर्व की स्लोप की बात करनी है तो स्लोप इज इक्वल टू, आप एक कर्व बना लीजिए पहले, उसमें क्या करिए, आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चले जाइए। जैसे अभी जो मैंने यहाँ पे स्लाइडर बनाया था, अब स्लाइडर तो होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, वो नीचे की तरफ आता है। जो कंजम्पशन कर्व है वो अपवर्ड है, क्योंकि ये इनकम और कंजम्पशन के बीच में पॉजिटिव रिलेशन जो है वो दिखा रही है। अब ये नहीं है कि डाउनवर्ड कर्व होगी तो उसकी स्लोप का फॉर्मूला कुछ और होगा, अपवर्ड होगी तो उसकी स्लोप का फॉर्मूला कुछ और होगा, ऐसे नहीं है। जो स्लोप का फॉर्मूला है वो सेम ही रहता है, चाहे कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो चाहे वो अपवर्ड स्लोपिंग हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब क्या होगा, आपने क्या करना है, कर्व बना लेनी है। जैसे मैंने एक कंजम्पशन कर्व बना ली, ओके। अब मुझे इसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है, तो मैं गया ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, या मैं गया बी पॉइंट से सी पॉइंट पे। अब मुझे स्लोप कैलकुलेट करनी है कि ए टू बी स्लोप कितनी है, और मुझे कैलकुलेट करना है कि बी टू सी स्लोप कितनी है। तो बहुत सिंपल है, जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं तो क्या होता है, आप वर्टिकली भी चेंज हो रहे होते हैं और आप हॉरिजॉन्टली भी चेंज हो रहे होते हैं। देखिए, जब मैं ए पॉइंट पे था, उस पॉइंट पे मेरी जो कंजम्पशन थी वो 80 थी और मेरी इनकम जो है वो 100 थी। जब मैं ए टू बी मूव किया तो मेरी इनकम जो है वो 100 से 200 हो गई और मेरी कंजम्पशन 80 टू 150 हो गई। मतलब जब मैं ए टू बी गया, मैंने हॉरिजॉन्टली भी मूव किया और मैंने वर्टिकली भी मूव किया। उसके बाद जब मैं बी टू सी गया, बी टू सी गया तो बी पे मेरी इनकम जो है वो 200 है और मेरी कंजम्पशन जो है वो 150 है। जब मैं सी पे गया तो क्या हो गया, अब मेरी इनकम जो है वो 200 से 300 हो गई और मेरी कंजम्पशन 150 टू 210 हो गई। मतलब फिर मैं वर्टिकली भी मैंने मूव किया और मैंने हॉरिजॉन्टली भी मूव किया। तो जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करते हैं तो आप वर्टिकली भी मूव कर रहे होते हैं और आप हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रहे होते हैं। सो किसी भी कर्व की जो स्लोप होगी, किसी भी कर्व की स्लोप जो वो किसके बराबर होती है, वो होती है वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। मतलब जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आपने मूव किया तो आपने वर्टिकली कितना मूव किया और आपने हॉरिजॉन्टली कितना मूव किया, द रेशियो ऑफ दैट इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ दैट कर्व। जैसे अगर हम बी पॉइंट पे बात करें, जब हम बी पॉइंट पे आए थे तो हमने वर्टिकली कितना मूव किया था, हम ए टू बी मूव किए। सो हमने वर्टिकली मूव किया फ्रॉम द कंजम्पशन लेवल ऑफ 80 टू 150, मतलब हमने कितना मूव किया 70, और हमने हॉरिजॉन्टली कितना मूव किया 100 टू 200, यानी कि मूव कितना किया। ये मत बोलना कि 200 मूव किया, नहीं, 100 पे तो आप ऑलरेडी खड़े थे, आप 200 पे गए तो आपने 100 मूव किया ना, तो डिवाइडेड बाय 100, सो योर स्लोप इज 0.7। अगर हम सी पॉइंट पे बात करें, अब आप बी टू सी गए तो आपने वर्टिकली कितना मूव किया, 150 पे आप ऑलरेडी खड़े थे, आप चले गए 210 पे, तो आपने मूव किया 60, हॉरिजॉन्टली
200 पे आप ऑलरेडी थे, आप गए 300 पे, तो मूव कितना किया 100, तो कितना आया 0.6। अब सोचो, अब अगर मैं इसको देखूं, जब मैं वर्टिकली जा रहा हूं 70, सो वो 70 क्या है, वो 70 है मेरा डेल्टा सी, और वर्टिकली जो 100 जा रहा हूं वो क्या है, वो है डेल्टा वाई। वैसे ही इधर जो मैं 60 मूव किया, 150 टू 200 गया, ये मैंने 60 मूव किया वर्टिकली, ये क्या है, ये मेरा डेल्टा सी है, ठीक है। और जब मैं यहां से यहां पे गया 200 टू 300, ये क्या है, ये मेरा डेल्टा वाई है। अब जरा चेक करना, ये एमपीसी का फॉर्मूला और ये स्लोप का फॉर्मूला सेम है। एमपीसी भी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई है, और आपकी स्लोप जो है वो भी क्या है, वो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कंजम्पशन कर्व की जो स्लोप होती है, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्लोप ऑफ अ consumption curve, the slope of a consumption curve is always equal to marginal propensity to consume। मतलब अगर आपने किसी भी पॉइंट पे स्लोप कैलकुलेट करनी है, तो आप क्या करिए, उसकी एमपीसी कैलकुलेट कर लीजिए। जितना एमपीसी का मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का आंसर होगा, उतना ही क्या होगा, उतना ही स्लोप का आंसर होगा। सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, इट इज ऑल्सो द स्लोप ऑफ द कंजम्पशन का। नाउ इट्स क्लियर। सो हमने आज डिस्कस किया कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है। सो ये आपस में कैसे रिलेटेड है, इसकी डायग्राम कैसे बनेगी, इसका टेबल कैसे बनेगा, ये हमने आज डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आर सेविंग फंक्शन, क्योंकि हमने इनकम में से कंजम्पशन तो कर ली, अब हमने उसी इनकम में से सेविंग भी करनी है। सो दैट इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। सो वी मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड। प्लीज डू लाइक द चैनल and share it as much as you can. Thank you very much.